नहीं माँ है ना, माँ का क्या यही अधिकार होता है। आइए यहाँ पर आराम से क्या करें, ठीक है। I just would like to remember everybody that in every society is not proper to whistle. Je rappelle à tous que dans aucune société, il est de bonne éducation de siffler. Merci. Again, I think nobody heard it. They have heard it. You all have heard it. Just remove that. They would like all to sit on the ground. Ask Vijay for that. Yeah, here. Madani, yeah. No hurry. Take it easy. Take it easy. Just carry one brick. It's too heavy, I think. Don't carry two of them. Yes, that's all right. Very heavy thing. You're now a specialist in building materials. Huh? You're a specialist in building materials. तशरीफ रख। Not working. I have a great privilege today to introduce you to a great Indian music maestro, Ustad Bismillah Khan. In fact, he does not need any introduction. His music speaks for him. As far as Bismillah Khan Sahib is concerned, it's a tradition in his family. His father,
Khan Sahab, Paigambar Baksh Sahab himself, a very great Shehnai singer. His grandfather, his great-grandfather, and his great-great-grandfather, they were all playing Shehnai in India and abroad all through. Here today, you will see 3 generations here. Khan Sahab, his sons, and his grandson, they're all here and still carrying the same tradition. As far as Mr. Khan is concerned, if I start telling you about the rewards and the big name he has got in India and abroad, it will take quite some time. I will only say one thing, that in India he was awarded as one of the greatest awards of Padma Vibhushan. He has traveled all over the world, not only once, twice, thrice, or maybe 30 or 40 times everywhere. And round the years he keeps traveling. It's really a great thing that Khan Sahab gave us time and today he is with us. I know that you are very keen to listen to him. Before that, I would like to introduce all those persons who have come with him. You know, Khan Sahab is sitting in front of you, Ustad Bismillah Khan. Mr. Jamin Hussain, his elder son. Abul Hassan, his nephew. He will play on Shehnai. Mumtaz Hussain, his nephew. He will also play on Shehnai. Muhammad Hussain, his grandson. He will perform on Surpeti. Habib Hussain Sahib. He will perform on Sur Shehnai. Qiyam Ali. He will also perform on Shehnai. Mazahir Hussain Sahib. He will play on Khurdak. And Nazim Hussain Khan Sahab. He is the youngest son of Khan Sahab and he will play on tabla. Bismillah Khan Sahab. Is it all right? All right? Is it all right? जनाब बिस्मिल्लाह खां साहब और आपके साथ आए हुए बड़े बड़े कारीगर लोग हैं। हम भी एक कारीगरी कर रहे हैं, इसका भी मुलाहिजा करिएगा। ये लोग हमारे संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इनको बिल्कुल मालूमात ही नहीं थी कि हमारा राग या हमारे स्वर आलाप क्या होते। लेकिन एक और तरीका है संगीत को जानने का, वो ये है कि हमारी रूह, अगर हमारी रूह जाग जाए तो हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो आसानी से समझ में आ जाता। ये लोग रागदारी नहीं समझते, लेकिन आप जान जाइएगा कि ये आपके संगीत को कितनी आसानी से
समझेंगे और उसका जो मज़ा है, असली आनंद है, उसे पूरी तरह से लूटें। और ये चीज़ अब अपने देश में कितनी कम हुए जा रही है, और कभी कभी तो घबराहट होने लग जाती है कि ये संगीत अपने देश से कहीं चला न जाए। लेकिन इन लोगों में देखते हुए लगता है कि फिर खूब ज़ोरों में पनपेगा। और आप खुश होइएगा कि ये लोग सब आतुर हैं आपका वादन सुनने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते आई। और आपका सबसे बड़ा जो काम है, शायद आपको इसका पता भी न हो, कि हर शुभ कार्य में जो परमात्मा की तरफ से एक आशीर्वाद होता है कि ऑस्पिशियसनेस जिसे कहते हैं, उस हर शुभ कार्य में आपका संगीत बजाया जाता है। उसके बगैर हो नहीं सकता। कहीं शादी होगा, इसलिए आप परमात्मा की इबादत करते ही हैं, क्योंकि आपके संगीत के सिवाय तो ना कोई शादी हो सकती, ना कोई ब्याह हो सकता है, ना कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। और ऐसे ही हमारे भी जो जितने भी शुभ कार्य होते हैं हर देश में, यहाँ पर 15 देशों में हम लोग कार्य कर रहे हैं, वहाँ आपका संगीत ज़रूर बजता है। ये आपको खूब अच्छे से जानते हैं और निहायत खुश हैं कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ ले आए और इनको आपने इतना माना कि इस तरह से जो कुछ भी हमसे सेवा हो सकती है। हम लोग असल में कोई इतने लायक लोग नहीं हैं, क्योंकि पैसे ऐसे की दृष्टि में सर्वसाधारण लोग हैं, लेकिन कद्रदान है। इसलिए आप माफ़ कर दीजिएगा अगर इन लोगों से कुछ कमी हो गई हो या आपको कोई परेशानी हुई हो या तकलीफ हुई हो, तो सबको इनको बच्चे समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। इसका जवाब आप इनको इनकी ज़बान में दे दीजिए। जी बताइए। ऐसी गलती जो किया है, हाँ, ऐसी गलती फिर करें। I just told him about what a great service he has done to all over the world, because for every auspicious occasion, for any marriage, wedding, or any other auspicious pujas or anything that we do in India, whether it is a religious thing or it's a marriage or any social thing, his Shehnai has to be played first, because it's auspiciousness. The thing is, the breath is the rule, and when it, through the breath, as you know, Sri Krishna used to play the flute. In the same way, this is another kind of a flute, and when that is played, only Shehnai is the only thing that has to be played in any case, whether you have other music or not, in any place like a city or a village. So I was telling him that you have been serving God all through by spreading auspiciousness, and if these children of mine have done anything that's not proper or might have done some mistakes in entertaining you, because you are such a great artist from India and all your people are here, so please forgive me. So he says that make such mistakes again and again. अभी और आपकी खिदमत में मैं शुरू कर रहा हूँ, और थोड़ी देर के बाद एक 10 मिनट हमको चाहिए। 10 मिनट जरा सांस बचा लेंगे तो फिर इंशाल्लाह चलेंगे। आज हम अपनी मर्जी के मुताबिक बजाएंगे। चढ़ रही है शारदा, चढ़ गई। नहीं, हुजूर वाला सवाल ये पैदा होता है कि हम जितने कलाकार अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में, ठीक है, वो हमको जानते हैं, उनको जानते हैं, लेकिन तमाम दुनिया में जो चक्कर लगा रहे हैं वो एक कला है, हमारी संगीत है, और उससे हमारे मुल्क का नाम होता है। हमको अगर कोई कहेगा बिस्मिल्लाह खान, तो वो इंडिया जरूर याद रखेगा।
है ना? तो ऐसी सूरत में हम वो प्रोग्राम जो करते हैं वो तो है अपनी जगह, लेकिन याद रखिएगा एक लफ्ज मैं कहता हूँ, उसकी कदर चाहता हूँ। ये प्रोग्राम नहीं कर रहा, दिल बज रहा है हमारा। अब जरा कह दे इनसे, he's so kind and so generous, and he's saying that I've traveled all over the world and I've played everywhere, and that's how the people know about India and have respect for India. But here I'm feeling as if not playing, but my heart is thumping, my heart is singing. It's feeling that my heart is being built up here. See, वो है ना, किसी के दिल में राह किए जा रहा हूँ मैं, कैसा हंसी गुनाह किए जा रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे तक इतना मजा उठा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से इंसान की सूरत में जरूरत आई, सूरत इंसान की है, हर इंसान की सूरत है सही, लेकिन यकीन मानिए हर एक का दिमाग, हर एक का दिल अलग अलग है। ये तो आप उसके तरफ से आएंगे, नाम सुनते थे लेकिन आज दर्शन हुआ है, और मैं कह नहीं सकता कि हमारे दिल में क्या कैफियत हो रही है। दिल की हालत जानने वाला वो मालिक है। हम तमाम जगह प्रोग्राम करते आ रहे हैं, बहुत प्रोग्राम किया, राशा में प्रोग्राम किया, तमाम घूमते घामते यहाँ आ गए और यहाँ भी प्रोग्राम किया, और उसके बाद हम ज्यादा भाग जाएंगे। लेकिन इत्तफाक है मुक़द्दर, कहते हैं कि दाने दाने पर मुहर है। जिस वक्त का दाना आबो दाना कहीं का बदा है, हमको वहां जाना है जरूर। और एक बात हमारे संगीत के लिए है, राग रसोई पागली जो कभी कभी बन जाए। तो ये साज हमारा और हम लोगों का काम ही ऐसा है। हर वक्त दाल पक्के बनती है दाल, लेकिन एक दिन दाल बहुत अच्छी बने। वही बात। हर रोज पगड़ी बनती है, लेकिन एक रोज पगड़ी का फेटा बहुत अच्छा है। वैसे ही राग है, यही राग हम हर जगह बजा के जाएंगे, लेकिन एक दिन कुछ बन जाता है। तो राग रसोई पागड़ी जो कभी कभी बन जाए, आपके सामने क्या हुआ वो मालिक बेहतर जानता है। आज इस छत्र के नीचे सारे देशों के लोग, सारे जमातों के लोग, सारे रिलीजन के लोग इकट्ठे हुए हैं और आप सबको एक सूत्र में बांधे चले जा रहे हैं। संगीत में आप जानती हैं और आप जानते हैं, उसमें उसके ढंग है आरोही और अमरोही। आरोही का मतलब है खरच से लेकर ऊपर की खरच तक जाना जी, और अमरोही का मतलब यह है कि ऊपर की खरच से नीचे तक आना। तो मैं ये देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान में जो शास्त्रीय संगीत जमाने हजारों बरस से चली आ रही है, अब कमी होती जा रही है। क्या भाई, कहाँ चलेगी ये संगीत, क्या हो गया? तो आरोही होते होते वहां पहुंच गए कि अब अवरोही चली आ रही, ये लोग ले रहे हैं। यही बात ये देख रहे हैं, वहां से चल के यहाँ तक आए, अब ये लोग ले रहे हैं। तमाशा है। हमारा संगीत, हमारी जबान, हमारे तहजीब राग बढ़ने का ढंग, ये बेचारे क्या जाने। लेकिन आज हमारा दिल इस बात से खुश होता है, मालिक हमारी गवर्नमेंट और हमारे देश को तंदुरुस्त रखे। आज अगर आज़ादी से पहले हम लोग आए होते तो तमाम दुनिया में हम लोगों का संगीत होता। हम लोग आ नहीं सके, इसलिए कि बाहर कोई नहीं आता था, जो है सब हिंदुस्तान में। जब आज़ाद हुए हैं और हमारी गवर्नमेंट को भी ख्याल आया है कि हाँ भाई ये कलाकारों को भेजना है, तो आज हम जहाँ जाते हैं तो कहीं गुलाम अली खां का रिकॉर्ड सुन रहे हैं, तो कहीं वलायत खां का रिकॉर्ड सुन रहे हैं, कभी अपना रिकॉर्ड सुन रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, मालिक की मेहरबानी। और उसके साथ साथ उसकी देन है, उसकी वजह है, आपको यहाँ भेज दिया है। आप इंसानी सूरत में आए हैं, लेकिन हम फरिश्ता समझते हैं कि फरिश्ता हैं, देखने में इंसान,
इन सबको क्या पढ़ा दिया है, क्या कर दिया कि वो तहजीब जो हमारे हिंदुस्तान से खत्म हो रही है यहाँ हो रही है। हाँ बिल्कुल, है ना, यकीन मान लीजिए, जो तहजीब हमारे हिंदुस्तान की थी, मशहूर थी, वो यहाँ हम देख रहे हैं। बहुत कायदे के लोग, बहुत। तो आप फरिश्ता बन के आएंगे। शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया निगम साहब। नहीं I can have, you can also have a cup Yes, of it's coming. tea. Just a cup of tea now. It's coming. जनेवा में आपके बारे में वो लड़की शिवांजलि जो है हाँ। उसने हमको बताया, और उसकी बातों में भी हमने वही अंदाज देखा कि जब ये शागिर्द हो के इसमें ये बात है तो आप कैसी होंगी। नहीं भैया, बस बस ये तो काफी है। हम तो जरा कम लेने के लिए जरा का हाँ। क्या कह रहे? हाँ, शुक्रिया अदा करिए। अच्छा, let them, if they want to have, let them. I don't think they'll eat anything, but if they want. Little bit. चाय पिया मैंने? कप में पीजिएगा कि नहीं, पी लिया, बस ठीक है। कप में अच्छा रहेगा? हम लोग भी आपकी तरह से फकीर मनुष्य आदमी हैं, खाने को जैसे मिल जाए कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। अच्छा बेटा, ये क्या है? ये मीठा है? अभी नहीं, अभी नहीं, क्यों? खुश रहो, खुश रहो। इन लोगों को हिंदी भी सिखा रहे हैं। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से ये कुदरत उसकी है कि जो ज्ञान हमारे समझ में नहीं आता कि आपकी बातों पर इतना गर्विता है कि अपनी जान देने के लिए तैयार हैं लोग। क्या कर दिया है आपने, क्या उनको पढ़ा दिया है। पीर हो गए, पीर। और मैं आपसे एक इल्तिजा करूंगा, जब हम अपनी आंखों से ये देख रहे हैं और हमारा ईमान कह रहा है कि कोई बात है, क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ है, उसमें से कुछ हमें भी इनायत फरमाए। आप तो पहले ही से पाए हुए हैं, पाए हुए हैं, पहले ही से आप पैदाइशी ऐसे हैं। लेकिन अगर उस पर और सेटल हो जाए तो अच्छा है ना। हम तो सबसे बताते थे कि आप पैदाइशी आप पा रहे हैं, मतलब पैदाइशी पी रहे हैं आप। उस मालिक के यहाँ छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। ये साहब ये 150 बरस के हैं और ये बच्चा 20 बरस का है। अरे तो 150 ऐसा नहीं है, इल्म जिसका ज्यादा है उसकी कदर है। हमारे सरकार दो आदम, हम जिनकी उम्मत हैं, वो भी बच्चे थे अपने खानदान में। अबू जहल भी बड़ा था, अबू लहब भी बड़ा है, सभी बड़े हैं। और ये कहते नहीं बच्चे की क्या बात, बच्चा बड़ा नहीं है, इल्म अगर है बस। तो हम इस नाते से हम आपको बुजुर्ग और बड़ा समझते हैं कि आप इल्म में हमसे आगे हैं, और हम कुछ नहीं चाहते, बहुत है आपके पास, हमको तो कुछ थोड़ा सा इनायत फरमा दे। वाह 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 जी 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 हाँ हाँ हाँ, वही वही बिल्कुल। हाँ हाँ बेशक बेशक बेशक। और हुजूर सवाल तो ये पैदा होता है कि हम एक ज़बान जानते हैं कि एक है खुदा और सब है उसके बंदे, है सब, जितने भी अमेरिका हो, चीन हो, जापान, कहीं भी हो, सब उसके बंदे। ये तो इंसान ने बनाया हुआ। हाँ जी हाँ बिल्कुल बेशक बेशक। जिसे खालिस कहते हैं ना, वही खालिस लोग ये है, ये है खालिस्तान। हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह।
अभी वो बना ही रहे कि यहाँ बन गया खाली बन गया, वो तो बेकारी में कह रहे हैं। ये सूर्य देवता ऐसे हैं, हमारे गुरु का कौल था, वो कहते थे कि तुम नशा न करना, कोई नशा नहीं, और फिर पलट के कहते हैं कि जो चाहे वो नशा करो। देखिए दोनों बात है, जो नशा चाहे, शराब पियो, गांजा पियो, भांग पियो, चरस, कोई भी नशा पियो, लेकिन मैं मना करता हूं कि मत पियो, न करना, और तुम्हारी तबीयत चाहे तो कर लेना। फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या अच्छा होता कि तुमको सुर का नशा हो जाता। बहुत कमाल की बात। क्या सुर का नशा, मेरे समझ में नहीं आया था, उस वक्त हमारी 12-14 साल की उम्र थी। इस सुर का नशा क्या, लेकिन यकीन मान लीजिए हुजूर वाला जब शुरू किया है, बालाजी मंदिर में हमने रियाज किया है। 18 वर्ष तक हमारे मामा ने उस मंदिर में रियाज किया है। कहाँ? बालाजी मंदिर बनारस में। अच्छा, 18 बरस तक बालाजी मंदिर में, वाह। 3.5 बरस तक हमने वहाँ रियाज किया है। हटे नहीं वहां से, खाली रमजान में रोजा रखना पड़ता था, तो साथ बजा ही नहीं सकते, वो उस वक्त नहीं करते, तो 3.5 साल 18 बरस हुए। तो वो क्या बात उनमें थी, अफसोस था उस जमाने में रेडियो नहीं, रिकॉर्ड नहीं, वरना वो ये कहते थे कि हम पानी तो नहीं बरसा सकेंगे और दिया तो नहीं जला सकेंगे, लेकिन वो कहते थे इसका मंत्र हमें मालूम है, लेकिन अब हमारी उम्र इतनी नहीं है कि जो हम इसको कर सकें, लेकिन इतना कर सकते हैं कि कठोर दिल का आदमी होगा तो उसकी आंख से आंसू निकलवा देंगे। ये सबसे बड़ी बात। वो कहते थे कि अगर संगदिल आदमी होगा तो उसकी आंख से आंसू निकलवा देंगे, और जब चाहूंगा हंसा दूंगा, जब चाहूंगा। ये कहते तो करके दिखाया उन्होंने, हमको खूब याद है। तो क्या बात है, जब रियाज चलते चलते हमारा भी रियाज जब कुछ थोड़ा पहुंचा है, वहां कुछ दूर पहुंच गए हैं, तो हमारी हालत ये, जब अपनी हालत बयान कर रहा हूं, सुर का असर जिसको कहते हैं, सुर का नशा। सब लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हाँ मैं ये बात है और वो बात है, हाँ वो, और मैं सुन रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद उनका मैं क्या कहा था, यानी इतनी देर की बात हुई, हमने समझ ही नहीं आया कि तुम क्या कह रहे हो। उसका नशा हो गया था, क्योंकि हमारे दिमाग में ये इसकी रिखप कैसे जा रही थी, इसकी गंधार कैसे जा रही, गंधार में अगर म्यो जाए तो कैसे जाए, अगर मरहम म्यो लगा के हर वक्त उसी चक्कर में। आज मालिक की मेहरबानी से ये हालत हो गई, फिक्र हो गई है, लेकिन कभी कभी ख्वाब में ऐसा होता है कि जो चीज हमारे समझ में नहीं आती हमको सुर ब्यौरा में समझ में आ जाता है, इसीलिए हाँ ख्वाब में आता है। जो बात उलझी है, नहीं समझ में कि यहाँ से पेच बल कैसे निकलेंगे, अच्छा वही नहीं समझ में आ रहा, और सो गए। तो रात को हमारे मामू की आवाज आती है कान में, शहनाई की, और वो कहते हैं यूं ही चलती है बेवकूफ, यूं नहीं है, ये बताते हैं यूं नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे हम कहा, वो उसी वक्त उठे रात को और खट से वजू किया, मालिक का नाम लिया, सांस लेके बैठ गए, निकल गई बात। तो ये है सुर का नशा। तो हम लोग इस अंदाज में हैं कि सुरों को और तालों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया वालों के सामने आ रहे हैं, दुनिया वाले तारीफ कर रहे हैं, और मालिक आपको तंदुरुस्त रखे कि आप हमारे वो तहजीब को पलटा रही हैं जो हजारों बरस पहले थी, वो पलट के आ रहे। इन लोगों में वो पहनावा, यहाँ की लड़कियों को देख रहे हैं, यहाँ की औरतों को कुछ साड़ी पहने हुए, बहुत हमें और बहुत कायदे के कपड़े पहनेंगी वैसे भी बहुत। और अभी देखिए ये था राखी के दिन थे, सबके हाथ में राखी बंधी हुई, आप देख लीजिए सब भाई बहन बने बैठे। ये कुछ नहीं है, कुछ अल्लाह का करम है आपके ऊपर, आपकी उसकी कुछ मेहरबानी है, आपको उसके यहाँ से कुछ मिला है, और यकीन मान लीजिए दिल यही चाहता है कि आप उसकी कदर करें, बस आप खुद उसकी कदर करें। ये दुनिया का काम नहीं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, तकरीर करते हैं और चले जाते हैं, कोई असर नहीं, और हम यहाँ देख रहे हैं फकीर मनुष्य बना दिया आपने सबको। He is talking to me in a very informal manner, and he's saying that he's so amazed to see that you have taken to the style of our Indian style, which was there before. Now we are very much changed, and we are taking to more Western style, and you are taking to our style of life, which is different. And he's surprised at how all of you have accepted this from me. Must be something about you, he says. You must be an angel.
लोगों से हम कोई पैसा ऐसा कभी नहीं लिया। पैसे की तो बात ही नहीं, प्यार में क्या पैसा है। लेकिन इनमें जो चीज़ जाग उठी है जिसे कि असस कहते हैं, असस, आपके कुरान शरीफ में इसके बारे में काफ़ी बताया गया और ये भी बताया गया कि जब कयामा का समय आएगा तब आपके हाथ पैर बोलेंगे। वो कयामा शुरू हो गया, हाथ पैर बोल रहे, सब मिली जुली बातें हैं बाबा। सब वही, वो तो सारा काम कर ही गए हैं पहले। उनकी तो बहुत सी बातें हम इस्तेमाल करते जी जी, हैं। रोए गवाही देंगे, हाथ गवाही देगा, टांग गवाही देंगे, फला जगह वही गवाही हो रही, वही सब सीख गए हैं। उंगलियों के इस पे बता सकते हैं क्या ये चीज हो गई, समय आ गया, समय आ गया। नहीं, ये हमने कहीं नहीं देखा, ये हम आपके पास ये चीज देखा है। हिंदुस्तान के अंदर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि फकीर लोग हैं और है, उनकी भी जथा, इसमें कोई शक नहीं। जबकि उनकी जबान एक जबान है, जो वो कहते हैं मान लेते हैं, लेकिन वो असर नहीं देखा हम। जुज़वी थोड़े से लोग हैं जो माला जपने वाले, उनके पास बाबा बाबा करके लोग गए, उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया, दो चार आदमी। ये पूरी जथा जो हमारी जबान भी नहीं जानते और क्या कर दिया आपने, मेरे समझ में नहीं आता। हमारी शहनाई से भी लोग उतने राजी नहीं होंगे जितनी आपके बात से। आपको दिल्ली में भी बहुत लोग हो गए हैं अब सहयोगी, और महाराष्ट्र में तो बहुत लोग हैं। आप जानते हैं महाराष्ट्र में तो संगीत का बड़ा ही शौक है लोगों को। और अभी परवीन सुल्ताना जी मेरे बर्थडे में गाई थी, अच्छा। अमजद अली साहब, ये सब लोग आ चुके हैं और इनकी बड़ी दोस्ती हो गई है उनसे। वाह वाह। और बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मेरे ऊपर भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी तो एक मामूली सा साजिंदा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, मामूली सा साज आप है। स्वयं योगी ही हैं, आप योगी ही पैदा हुए हैं, योगी जन हैं आप। ये तो लोग जानते हैं, इनको मैंने पहले बताया था कि आप रियलाइज सोल हैं, पैदा हुए। मुझे असल में कोई शौक भी नहीं है, वही सही बात। निशानी है ना। बस अब सफर में है, मजबूर है, सिगरेट पीता हूँ। घर पर जाने के बाद ये भी फेंक देता हूँ। हमारी लड़की है, खाना खाने के बाद हमको एक चिल्म हुक्का देती है, चौसेरा और लखनऊ का खमीरा, वो हुक्का वहाँ रखा हुआ, यहाँ सटक थोड़ा सा पी रहा, बस। और कोई नशा नहीं, बीड़ी तक नहीं पीते, पान तक नहीं खाते, सुर्ती नहीं खाते। के साथ के लोग पान उन खाते हैं, हम नहीं खाते। तो ये सब भी चीज उसी में से आती है। अपने आप में अपनी जबान में कोई ऐसी बात पैदा करो कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना बराबर वो कहते जाओ तो एक दिन हो जाएगा। जबान की तासीर होती है। तो हमारे मामू यही कहते थे कि तुम अपनी जबान में वो बात पैदा करो, सच बोलो, धोखा मत करो, किसी को परेशान न करो। कुछ दिन के बाद वही जो साज बोलता है तुम्हारा, वो सच्चा बोलने लगेगा। सच बात, बहुत। ले भैया, He says he just smokes, so I think all his smoking will also vanish now. सबके यहाँ सिगरेट छूट गई है और आपकी भी छूट ही जाएगी। आपने चाय पी ली? कर ठीक समझे तो दरबारी में सुना दीजिए, दरबारी बहुत पसंद करते हैं। दरबारी आपको सुना देंगे, लेकिन आज से एक इल्तिजा हमारी है जी। इधर जितना भी प्रोग्राम हमने किया है 40 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट, बस इससे जायद नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि कब शुरू किया और क्या वो टाइम देख रही हूँ मैं। अच्छा, संगीत का लुत्फ ही यही है कि रात भर होता रहे और फिर भी कम मालूम हो। यही हालत है सबकी। अब मैं आपकी फरमाइश के मुताबिक दरबारी का थोड़ा सा विचार और उसका रूप दिखाऊंगा हाँ, जी और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। जी, अच्छा ठीक है, थक गया हूं, हमारा सांस क्योंकि फंसा मैं है। समझ रही हूँ, लेकिन वो इन लोगों को बड़ा शौक है। मुझसे पहले कहा था कि दरबारी जरूर कहिएगा। नहीं, दरबारी ये तो देखिए कि जैसे मारवा है या हाँ, श्री है, जी, ऐसे जी। रागों को समझते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। हाँ, अब मैं कुछ कह नहीं सकता कि
उसकी करीमी रहीमी परवरदिगार की क्या है कि ये लोग हमारा राग और इस ढंग से समझ रहे हैं। हम इस वक्त ये मजा ले रहे हैं, यकीन मान लीजिए जिस जगह दाद देने की जगह है वहीं दाद बराबर दाद देते। और हमको ये पता चल रहा है कि हम यहाँ ये फ्रांस में नहीं है, हम तो हिंदुस्तान में बैठे हैं। हमको तो ये मालूम हो रहा है कि हम अपनी पब्लिक में बैठे हैं और वहाँ हमको जैसे दादें मिलती हैं वो है, और ये ऐसी सच्ची दाद दे रहे हैं। वह हमारी दुआ है कि सब के सब तंदुरुस्त रहे और हमारा संगीत आगे बढ़े। शुक्रिया। He is going to now play for you Darbari, which raga you all like very much and you enjoy it. But as it is, it's such a lot of time he's given. It's all the time, the breath is there. He's so kind to, and he's very happy that you appreciate the music at the right time, and he's quite surprised at it. We have just heard the greatest master of India in Shehnai. For half a century, he has been leading this great country in this great field of music. We are very, very fortunate. He said two things. I won't take too much time. I know your heart must be full at this time. There's no time for speech. But he said two things that I must repeat to you. And he said he was most gracious. He said he had addressed many gatherings, played before many people, but never a gathering of this kind. He said what a wonderful new world this is. Faces which he had never seen, expressions which he had never witnessed. He said it's a new world he had come to, and therefore he would play not the Shehnai only, but play from his heart with all his soul, and this is what he has done. He paid a great tribute to you, and I join in that. But he said something more. And he said he would play from his heart with all his soul, because he was playing before divinity itself. The Almighty had sent someone here to create a new world, and that is the person standing before you. Now I want to turn to the great master. On your behalf, I'll say a few words. If you permit me, I'll say a few words in our own language so that we may convey your sentiments to him. Yes. You agree? Yes.
मैं इजाजत चाहता हूँ। आफ्ताब फ़न मौसीकी जनाब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। अल्फाज हैं नहीं मेरे पास कि मैं अर्ज कर सकूं कि हम लोगों को कितनी खुशी है, रूहानी खुशी है और उससे ज़्यादा फ़ख्र है। आप हमारे मुल्क के एक बड़े ज़बरदस्त नुमाइंदे हैं। म्यूज़िक में तो कमाल को भी पीछे छोड़ दिया आपने। लोग कहते हैं कि कमाल हासिल नहीं हो सकता। People say you cannot reach perfection, but here is the great man of India who has left perfection behind, gone beyond that. पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कहता हूं, हमको कुछ नहीं चाहिए। संगीत कलाकार क्या है इसको मालिक बेहतर जानता है। हम लोगों को टाइम से खाना चाहिए और रियाज करने को चाहिए इस दुनिया में। He is the great artist that he is, the generous person. He says, we, the artists, speaking for him, are devoted to the ultimate creator, the Almighty. What do we need? We need music. We need opportunity to play music. And what a glorious opportunity this was. Well, on your behalf, once again, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी इज्जत अफजाई की, लेकिन जो गाना सुनाया आपने, जो म्यूजिक सुनाया आज, उससे तो आपने एक दूसरी दुनिया में हम लोगों को उठा दिया। असल तो ये है कि रूहानी ग़िज़ा है ये, और रूहानी ग़िज़ा की अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर मेहरबानी हो गई है। और आप बैठी थी जिस वक्त मैं देखता था, पता नहीं कौन सा सुर कैसे ढंग से लग जाता है। He says he was, of course he was playing, but he doesn't know how all the beautiful notes came through his Shahnai. May I also, on your behalf, pay a tribute to this wonderful family. There is also Indian culture at its best. Here is the proud father. I want to pay tribute to his sons and nephews and other relatives who are here. It has been a glorious family. I am so proud of them. A good hand to them. And finally, many, many thanks to Mr. Patrick, Mr. Michel. On my behalf, thank you for inviting me to be here today. Thank you all very much. ठंडक आ रही नहीं, हाथ आ रही है ना, हो गए ना पार, सबके हो गया, सबको आप देखिए, आपके भी आप हाथ करिएगा। और ये जो ताकत है, रूहानी ताकत है, ये चारों तरफ परमात्मा का प्यार है। इसको बस आप किसी पे हाथ रख दीजिए, तंदुरुस्त हो जाए। अच्छा, बस इसको आप रख दीजिए, आर्टिस्ट हो जाए, जो कहिएगा सो हो जाए। बस बस मेहरबानी, हमको बहुत बड़ी चीज मिल गई। वाह वाह वाह। फिर मिलेंगे आप। अच्छी बात। हम तो ये कहेंगे जब हम इधर आते हैं, फ्रांस आ गए या जर्मनी आ गए या लंदन आ गए कहीं, और अखबारों में निकलता है, और आप इस तरफ हैं कहीं, तो आप हमको लिखिए, हमको मालूम होना चाहिए कि आप परा जगह हैं। अच्छा। हम अपना प्रोग्राम उधर बनाएंगे। अच्छा। बस बिल्कुल ये है। जब भी कभी ऐसा हो तो हम नहीं पता लगा सकेंगे आप कहाँ। आप हमको लिखिए कि खान साहब मैं यहाँ हूँ, तो हम उसकी तारीख बताएंगे कि हम इतने ऐसे ऐसे आए, 2-3 रोज आपको दे रहे हैं प्रोग्राम में।